ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آج کے بلیٹن میں آپ کو بتائیں گے زندگی سے زمین پیاری، کمال بچاؤ مشن جاری، ای وی ایم قانون سازی ممکن، نون لیگ میں اختلافات، 40 سال بعد امن، اہم ملاقاتیں، پیٹرول کی قیمت پر بحث اور شائقین کرکٹ کا انتظار ختم۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے افسوسناک خبر سے۔ زمین کا تنازعہ خوفناک تصادم میں بدل گیا۔ لوہے دین میں جنازے پر مخالف گروہ نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 9 افراد جان کی بازی ہار گئے، 17 زخمی بھی ہوئے۔ پولیس اور ایلیٹ فورس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ ملزمان کی تلاش میں چھاپے بھی جاری ہیں۔ لوور دیر میں خونی تصادم کے بعد علاقے میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ جنازے پر فائرنگ کے بعد مسلح تصادم میں 9 افراد کی جان چلی گئی، 17 زخمی ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور اس وقت صورتحال کچھ اس طرح سے کہ 17 افراد زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ لوور دیر میں خونی تصادم کے بعد علاقے میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ جنازے پر فائرنگ کے بعد مسلح تصادم میں 9 افراد کی جان چلی گئی، 17 زخمی ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور پولیس یہاں پر صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ لوور دیر کا علاقہ جہاں پر خونی تصادم کے بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا، جنازے پر فائرنگ ہوئی، مسلح تصادم میں 9 افراد کی جان چلی گئی، 17 زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جڑاوالا سے خبر ہے جہاں پر ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے 2 ملزمان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے کالے کوٹ میں ملبوس ایک ملزم کو دھر لیا، تفتیش شروع کر دی گئی۔ آئی جی پنجاب نے آر پی او فیصل آباد سے رپورٹ طلب کر لی۔ جڑاوالا میں جج کے سامنے وکیل کی کارروائی، فائرنگ کر کے 2 ملزمان کی جان لے لی۔ ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے قتل کے مقدمے میں نامزد 2 ملزمان کو ہتھکڑی لگا کر پیش کیا گیا۔ اسی دوران وکیل کا روپ دھارے شخص نے فائرنگ کر کے دونوں کو قتل کر دیا۔ کمرہ عدالت میں دوہرے قتل کی واردات پر بھگدڑ مچ گئی۔ آئی جی پنجاب نے آر پی او فیصل آباد سے رپورٹ طلب کر لی۔ پولیس نے ایک ملزم کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ اور بلوچستان میں سیاسی بحران تھم نہ سکا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی پارٹی کے ناراض اراکین کو منانے کوئٹہ پہنچے، تاہم کوئی واضح پیش رفت نہ ہو سکی۔ ملاقات میں صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی نے چیئرمین سینٹ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ مذاکرات میں اسپیکر عبدالقدوس بزنجو، سینیٹر سرفراز بگٹی اور سینیٹر منظور کاکڑ بھی شریک ہوئے۔ بلوچستان کا سیاسی بحران، وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے سیاسی کوششیں جاری۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بلوچستان عوامی پارٹی کے ناراض ارکان کو منانے کوئٹہ پہنچے۔ بلوچستان اسمبلی میں اہم ملاقاتیں کی، تاہم کوئی واضح پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اپوزیشن نے تحریک اعتماد ان کے خلاف عدم اعتماد لایا ہے، تو ہم جا رہے ہیں وہاں پہ، اور سینیٹر صاحبان اور ایم این اے بھی میرے ساتھ ہیں ہماری پارٹی کے۔ ہم جائیں گے، اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت کریں گے، جام صاحب سے بھی ملیں گے اور انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ضرور منائیں گے، کیوں نہیں منائیں گے، ہماری پارٹی اکٹھے مل کے چلیں گے۔ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، چیئرمین صاحب آئے اسمبلی وزٹ کر، میں ہاؤس کا کسٹوڈین، میں باپ پارٹی کا ہوں، باپ پارٹی کے ساتھ ہوں۔ بعد ازاں اسپیکر عبدالقدوس کے گھر بھی بیٹھک لگی۔ بات چیت میں بلوچستان عوامی پارٹی کے ناراض ارکان اور صوبائی وزراء نے چیئرمین سینٹ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ مذاکرات میں اسپیکر عبدالقدوس بزنجو، سینیٹر سرفراز بگٹی اور سینیٹر منظور کاکڑ بھی شریک ہوئے۔ بلوچستان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 33 اراکین کی ضرورت ہے۔ حزب اختلاف کے اراکین کا دعویٰ ہے کہ انہیں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے مطلوبہ اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ سیاسی بحران ہے، ابھی تک تھم نہیں سکا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی پارٹی کے ناراض اراکین کو منانے کوئٹہ پہنچے تھے۔ اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہ امانی۔ بہت شکریہ لیاقت صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، چیئرمین سینٹ بھی پہنچے ناراض اراکین کو منانے، تو بات بنی ہے کہ نہیں بنی ہے؟ نہیں، انشاءاللہ بات بنے گی، اور چیئرمین سینٹ صاحب جو ہے صادق سنجرانی صاحب، اس سے ہمارے بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر نے وہ تشریف لائے تھے اور ہمارے جو رفقا ہیں ان سے ملنے گئے، تو جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ انشاءاللہ بات اتنی بھی نہیں ٹوٹی کہ نہ بنے، انشاءاللہ بات بن جائے گی، کوئی ایشو نہیں۔ اچھا لیاقت صاحب، جو ہر کوئی اس وقت سوال کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیسک مسئلہ کیا ہے، ان ناراض اراکین کو وزیر اعلیٰ سے مسائل کیا ہیں؟
देखिए रिजर्वेशन मुख्तलिफ MPs के या मिनिस्टर्स के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में बाज़ मसाइल होते हैं, बाज़ ट्रांसफर पोस्टिंग के भी मसाइल हो सकते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे मसाइल हैं, हमेशा होते हैं, पार्टीज में होते हैं, दीगर सूबों में भी, पार्टीज में भी आपने नोट किया होगा। तो इस तरह के छोटे मोटे मसाइल होते हैं, इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे। और लियाकत साहब, अब जो तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं उसमें हुकूमती अरकान भी शामिल हैं, तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? हुकूमती अरकान भी नाराज़ हैं वज़ीर आला से? नहीं, वो तो रिजर्वेशन जो है उनके उन्होंने तो बता दिए। बाकी जो तहरीक अदम एतमाद है वो अपोजिशन की तरफ से जो है लाई जा रही है, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से नहीं लाया जा रहा, तो वो एक डिफरेंट मामला है। आगे अब लियाकत शाहवानी साहब क्या मामलात को बढ़ते हुए देख रहे हैं? आप समझते हैं कि आगे मामलात हल हो जाएंगे और वज़ीर आला जाम कमाल साहब ही बलोचिस्तान के वज़ीर आला रहेंगे, या फिर मामलात बिगड़ भी सकते हैं? नहीं, इंशाल्लाह वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ही रहेंगे, और इस तरह के रिजर्वेशन और दोस्तों की तरफ से इश्यूज जो है पास में भी रहेंगे, पहली दफा नहीं है। लेकिन जब जब इस तरह के मसाइल सामने आए हैं, डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है, हमारे वैल्यूज है, कल्चर है, फिर दोस्तों को मनाते हैं और मनाने में पास में भी कामयाब होते रहे, इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। ठीक, लियाकत शाहवानी साहब तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत हमारे साथ बात कर रहे थे, नुक्ते नज़र पेश कर रहे थे इसी हवाले से। आपका शुक्रिया। अहम खबर देंगे आपको। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिस्मिक सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। आपको बता रहे हैं शिमाली वज़ीरिस्तान में जिसका इलाका रिस्मिक बताया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया गया है। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला मिली, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया और इस ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द भी मारे जाने की इतलात मौसूल हो रही हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान इलाका है रिस्मिक, जहां पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया गया है। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर यह ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भेजे जाने की तहरीक पेश की जाएगी। अपोजिशन ने इजलास में सख्त एहतजाज का मंसूबा बना लिया। इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ इजलास से वॉकआउट का भी इम्कान है। इजलास सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज दोपहर 11 बजे तलब किया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास 17 सितंबर बरोज़ जुम्मे के दिन 11 बजे तलब कर लिया। इजलास का एजेंडा भी जारी। इजलास में इलेक्शन बिल दोम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भेजे जाने की तहरीक पेश की जाएगी। इससे कबल सेनेट का ऐवान 90 रोज़ में भी ये बिल्स मंजूर करने में नाकाम हो गया था। तहरीक मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान पेश करेंगे। इजलास में तहरीक बैतुल माल तरमीमी बिल और मतरूका वक्फ इमलाक तरमीमी बिल भी पेश किए जाएंगे। सदर ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किया है। इलेक्शन कमीशन का वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और आज़म सवाती के इल्जामात पर एक्शन। दोनों वजीरों को नोटिस जारी कर दिए गए। फवाद चौधरी और आज़म सवाती से जवाब तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात के सबूत मांग लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के जरिए इस मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहते हैं, और आज हालत ये है कि वो बहसियत फरीक के हमारे मुकाबले आ चुके हैं। फरीक के वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और आज़म सवाती के इल्ज़ामात, इलेक्शन कमीशन का भरपूर जवाब। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दोनों वज़रा को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी वज़रा के इल्ज़ामात के हवाले से स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़फ़र इकबाल मलिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ज़राए का कहना है इजलास में वफाकी वज़रा के इल्ज़ामात के क्लिप्स का तफसीली जायज़ा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सवाती से इल्ज़ामात के सबूत मांग लिए। दोनों से जवाब तलब कर लिया गया। आई वोटिंग के मामले पर इलेक्शन कमीशन और नादरा में भी ठन गई। दोनों इदारों में खतूत का तबादला हुआ। नादरा ने आई वोटिंग के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए के नए मुआहिदे की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाबी खत में लिखा कि नादरा पहले बताए कि उसने आई वोटिंग का साबिका मंसूबा क्यों छोड़ा। नादरा के खत से तासुर मिलता है कि इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है।
आई वोटिंग के मामले पर इलेक्शन कमीशन और नादरा में ठन गई। नादरा ने इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा, आई वोटिंग के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए का नया मुआहदा करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन मुस्बत पेशरफ करे। इलेक्शन कमीशन ने जवाबी खत में लिखा, नादरा पहले बताए इसने आई वोटिंग का साबिका मंसूबा क्यों छोड़ा। साबिक मंसूबे पर 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। अगर छोड़े गए निज़ाम में खामियां थीं तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी पर जिम्मेदारी का तयन किया गया? इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नादरा के खत से लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है। नादरा का लहजा मायूस कुन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बयानिए की जंग तेज़ हो गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मुसलसल दूसरे इजलास में भी शरीक नहीं हुए। नवाज शरीफ तंजीम के मामलात लंदन से कंट्रोल करने लगे। मरीम नवाज कहती हैं पार्टी के अंदर इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक हैं। इख्तलाफात का प्रोपेगेंडा दुश्मन कर रहा है। इजलास में शरीक अहम रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ और हमजा की अदम मौजूदगी से मुतालिक मीडिया के सवालात पर तबसरे से गुरेज किया। इलाकाई ओहदेदार भी इजलास में सूरत हाल पर तशवीश में मुब्तला नजर आए। नून लीग में बयानिए की जंग तेज होती नजर आने लगी। पार्टी सदर शहबाज शरीफ और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज पार्टी के तंजीमी मामलात से बिल्कुल लाताल्लुक हो गए। दोनों रहनुमाओं ने मुसलसल दूसरे इजलास में शिरकत नहीं की जबकि दोनों रहनुमा लाहौर में ही मौजूद हैं। इजलास में शरीक इलाकाई रहनुमा भी सूरत हाल पर तशवीश का शिकार नजर आए। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ तंजीम साजी के मामलात पर बराह रास्त हिदायत दे रहे हैं और इस हवाले से जिम्मेदारियां मरीम नवाज को सौंप दी हैं। नवाज शरीफ ने इजलास से वीडियो लिंक खिताब भी किया। मरीम नवाज का कहना था कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में इख्तलाफात की खबरें दुश्मन का प्रोपेगेंडा हैं। ये पार्टी है और पार्टी के अंदर इख्तलाफात हो सकते हैं। दुश्मन का प्रोपेगेंडा है, इस पर कान नहीं धरने। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह एक है। किसी के अंदर जो भी इख्तलाफ हो सकता है ये जमहूरी जमात है। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई खड़ा होकर क़यादत पर सवाल उठाएगा। जब क़यादत की बात आती है तो सब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर मुतफिक है। इजलास में शरीक अवैस लगारी का कहना था कि कोई वजह होगी कि शहबाज शरीफ इजलास में नहीं आए, तहाम उसे बाइकआउट कहना दुरुस्त नहीं। सिंध में स्कूल्स के लिए महंगी डेस्क्स की खरीदारी का स्कैंडल। आज सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सूबाई हुकूमत पर इल्जाम है कि स्कूल्स के लिए फी डेस्क 5,000 के बजाय 29,000 में खरीदने के लिए ठेका मनपसंद कंपनी को दिया गया। दरखास्त गुजार ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त की है। सिंध में महंगी डेस्कों की खरीदारी रुकवाने के लिए अदालत जा पहुंचा शहरी। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई कि सूबाई हुकूमत ने स्कूलों की डेस्कें खरीदने का टेंडर जारी किया और 5,000 रुपए की डेस्क 29,000 में खरीदने का ठेका मनपसंद कंपनी को दे दिया। दरख्वास्त के मुताबिक 30 जून को बजट की मियाद खत्म होने से 1 रोज पहले वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया। वर्क ऑर्डर को कलअदम करार देकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। अदालत का 2 रुकनी बेंच आज दरख्वास्त की समाअत करेगा। मुराद अली शाह की असेंबली में आने की इब्तिदा ही झूठ और फ्रॉड से हुई थी। पहले उन्होंने दोहरी शहरियत छुपाई, अब करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदम शेख स्कूल डेस्कों के मामले पर एक बार फिर वज़ीर आला सिंध पर बरस पड़े। कहते हैं मुराद अली शाह के दौर में कभी चारा, कभी मच्छरदानियाँ, कभी मुर्गियों बकरियों और कभी ट्रैक्टर के नाम पर करप्शन होती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बिलावल हाउस मनशियात के पैसों से चल रहा है। मुराद अली शाह साहब की इब्तदा जो असम्बली में आने पे हुई झूठ, फ्रॉड, 2 नंबरी, चालबाजी, नौसरबाजी से हुई और इन्होंने जो अपना जब ये ड्यूल नेशनल थे ड्यूल नेशनलिटी छुपाई और इन्होंने MPA बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि आपने अपने नॉमिनेशन पेपर में छुपाया, इसलिए जो तनख्वाहें ली वो वापस करो, जो मराहत ली वो वापस करो। उसके बाद इन्होंने रिजाइन किया। आपको पता होगा कि इन्होंने किसी और को लड़ाया और एडवाइजर बन गए। डेस्कें 6,500 की डेस्क 5,500 की डेस्क 29,000 में खरीदी गई। जिसको भैंस बकरी देनी है उसको ट्रेनिंग के नाम पे 35 करोड़ हमने खुद निकाले। गरीब के घर में अगर भैंस होती है तो उसकी लेवा का घर चलता है। ये मुर्गियाँ और बकरियाँ तरीक़ाकार राणा लिया को पालनी नहीं आती, दे दो 2 करोड़ रुपए इसको। इस तरीके से 35 करोड़ इन्होंने लोगों को बांटे हैं कि मुर्गी ट्रेनिंग देने के लिए इन्होंने। पाकिस्तान को बरतानिया की जानिब से रेड लिस्ट से निकालने के हवाले से फैसला एक दिन के लिए मौखिर कर दिया गया। इस हवाले से इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल की जानिब से लंदन के मकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे खुसूसी अब्दुल मजीद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अब्दुल मजीद।
जैसा कि आज बरतानवी हुकूमत की जानब से पाकिस्तान को जो रेड लिस्ट से निकालने के हवाले से जो रिव्यू किया जाना था वो एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और अब ये रिव्यू जो है वो कल किया जाएगा और कल देखते हैं कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला जाता है या उसको बदस्तूर जो रेड लिस्ट में रखा जाता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अली सैयद साहब। अमीर साहब बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि कितना एक चांस है कि कल पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया जाएगा? देखिए, हम लोग बहुत होपफुल हैं कि ना कल इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। काफ़ी एमपी से बात हुई है, काफ़ी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से बात हुई है, लोगों ने एश्योरेंस दिलाया कि पाकिस्तान को जो है निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। इस सिलसिले में हमने आज अपनी एक कॉन्फ्रेंस भी करी है जिसमें हमने डिफरेंट एमपीज़ को बुलाया है। सैम टेरी हैं, जॉन कलोडी से मार्केट मुडन, ये लोग आ रहे हैं। तो आज भी ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट पे कि किस तरह रेड लिस्ट से जो है पाकिस्तान को निकाला जाए। रेड लिस्ट में पाकिस्तान के होने से देखें बहुत बड़े मसाइल पाकिस्तानी कम्युनिटी को आ गए हैं। सब में बड़ा जो प्रॉब्लम ये आ गया है कि जो स्टूडेंट आने थे वो नहीं आए, बिजनेस में नहीं आ सकते। दूसरी बात ये है कि जो बिजनेस का जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग जो पाकिस्तान में फंसे में वो लोग नहीं आ सकते। तकरीबन 90 से 95% ऐसा है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो है हज़ारों की तादाद में ब्रिटिश पाकिस्तानी जो हैं वो फंसे हुए हैं और वो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला जाएगा, वो यहाँ पे वापस आ सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।